Imagine a place where beautiful landscapes stretch far beyond your visibility. A place where the air is pure, life simple, and hearts full of bliss. Imagine a place without noise, pollution, and daily office and school runs. Where the only sounds you will hear are birds singing with joy and crickets making merry in the grass. A place where the food has no preservatives, chemicals, and is not genetically modified. Where you don't have to worry about where your clean water will come from. Where running out of delivery slots can never be a problem. People are self-sufficient and have no worries of lockdowns. Where the virtual world barely has any importance and you discover a whole new physical existence. Now you must be thinking, does such a place actually exist? Bhargobala is the name of this place, and that's where we are taking you today. In this video, we will take you away from the hustle and bustle of city life and let you experience all this along with the peace and tranquility of village life. The drive along the Giza Road is no doubt one of the most beautiful drives in the world. It was paved through the hard rocky mountains which cost us numerous precious lives. Some parts of this road can be extremely dangerous, so you must drive with care. दरिया सिंध के साथ साथ हम इस वक्त चल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। We are off to a village, Gilgit. खूबसूरत पाकिस्तान, खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत नदी. This is my country. और वो सामने है विलेज जहाँ पे हमने जाना है, वो सामने है. ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये है हमारी मंजिल, हमारा विलेज, जहाँ पे आज हम जाएंगे और आपको विलेज लाइफ दिखाएंगे. Most deadliest roads in the world और in Pakistan too. ये देखिए जनाब, बहुत ही खूबसूरत ड्राइव है ये. पहाड़ को काट के ये रोड्स बनाई गई हैं और पता नहीं कितनी जानें गई हैं इस काम में, जिनको हमें भूलना नहीं चाहिए. जो खुशियाँ आज हमें मिल रही हैं, ये बहुत सी कीमती जानों को गंवाने के बाद मिली हैं. ये पाकिस्तान बहुत मुश्किलों से बना है. अल्लाह इसको सलामत रखे, हमारे मुल्क को. बिस्मिल्लाह. और ये जनाब हम नीचे अभी उतर रहे हैं और देखिए जनाब, बड़े बड़ों के छक्के छूट जाते हैं जब यहाँ पे ऐसी सड़कों पे आप आते हैं. मैं समझी जनाब हमारे ड्राइवर नीचे जाने वाले हैं और एकदम से मैं डर गई. तो ये अभी हम इस ब्रिज के ऊपर से गुजरेंगे, आपको दिखाएंगे. और खूबसूरत तरीन रास्ता
दरिया के उस पार ये ब्रिज हम क्रॉस करेंगे और हम इस गांव में जाएंगे। क्या बात है, दिस इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। देखिए यहाँ पे गाड़ियों को टक्करें लगी होंगी, यकीन है जो ये टूटा हुआ है ब्रिज। Oh my God, this bridge is actually moving. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का नाम लेकर हम इस ख़तरनाक ब्रिज के ऊपर से गुज़र रहे हैं इस वक्त, और मैं आपको दिखा रही हूँ ये खूबसूरत मंज़र और a beautiful sight. The village called Bargo Bala is on the other side of the river Sindh, and we will reach it using this wooden bridge. We're off to see a village in Gilgit. Beautiful Pakistan, beautiful Gilgit. This crossing is also an experience in itself. गिलगित के गांव में पहुंच चुके हैं। भाई आपके गांव का नाम क्या है? बारगो। गांव के कच्चे घर और दीवारें आप देखें पत्थरों से बनी हुई, बहुत ही मजबूत। The village children were the first to greet us with their warm smiles. Their naive giggles, curiosity, and surprise to see us there, following us wherever we went was heartwarming. इस वक्त हम यहाँ पे बारगो बाला में है। ये गिलगित का एक गांव है, A village in Gilgit. कैसी हो बेटा? ठीक ठाक? ये देखिए जनाब, हंसते हुए प्यारे प्यारे बच्चे। और ये आसिफ भाई जो कि मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, उनके मामू का घर है। We then entered the house of our amazing hosts. The house was fairly modern, but to our delight, their cooking and storage style still had the primitive touch. गांव की सैर करवाएंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं ज़रा देख लूँ कि ये यहाँ पे कुछ बन रहा है नीचे चूल्हे पे। ये आप क्या बना रही हैं? इसका नाम क्या है? गोटी, गोली, गोली। और ये गोली का मसाला है। ये किस चीज़ से बनता है? आटे से बनता है। आटे में और क्या डालते हैं? एक अंडा और आटा, ठीक। तो ये पैनकेक्स है ना? These are probably pancakes. ये आप किस चीज़ के साथ खाते हैं? चाय के साथ? चाय के साथ शाम के वक्त या फिर खाने की चीज़ है ये? ये रोटी अभी अच्छा, ये मेहमानों के लिए बनाते हैं, ठीक। चूल्हा देखिए, और इसके साथ इसका एग्जॉस्ट पाइप लगा हुआ है जो ऊपर की तरफ इसका धुआं निकालता है। Ladies are enjoying our company. हम इन बहनों को वीडियो में नहीं लेकर आ रहे पर्दे की वजह से, सिर्फ हम लोग दिखा रहे हैं आपको कि ये मेहमानों के किस तरह से खाते तवाज़ु करते हैं। और ये देखें, ये पैनकेक्स बन रहे हैं इस वक्त जो चाय के साथ पेश किए जाते हैं। अभी ये इसको उल्टाएंगी तो मैं आपको फुल दिखाऊंगी ये दूसरी तरफ से कैसे बन गया। ये जो आप
आप सामने देख रहे हैं ये अखरोट का दरख्त है। हाँ। गिलगित में अखरोट बहुत पाए जाते हैं और ये आइडियल वेदर है अखरोट के दरख्तों के लिए, वॉलनट्स। और ये इसके अंदर ये क्या चीज़ रखी हुई है? ये जो गाय खाते हैं ना। गाय खाती है? हाँ। अच्छा, ये गाय का चारा है। हाँ हाँ। ये इसके अंदर इसलिए रखी हुई है कि ये गीली ना हो? सर्दी में खाते हैं ना ये। अभी अच्छा। तो गीली होती है। गीली होती है? हाँ। तो अंदर इसके सर्दियों में गाय को डालते हैं ये। दरख्त में किस लिए रखी हुई? सुखाने के लिए? हाँ नहीं, बस उधर बिठाते हैं और जगह में नहीं रखते हैं। अच्छा, दरख्त पे। दरख्त पे ही रखते हैं। ठीक है। कैसे हो बच्चों? One lovely lady then took us on a walk through the organic vegetable fields to taste the heavenly fruits and witness village folk at work, harvesting and storing their food and fodder for the extreme and harsh winters that were soon approaching. ये मामी है जो हमें सैर करवा रही है गाँव की। अच्छा, इसके ऊपर अंगूरों की बेल है। हाँ। चश्मे से आ रहा होगा। किसी ने मंदिर मचाई। These people are self-sufficient. They actually supply to other places. The children. So apparently the children are running after me. And this kind lady driven them away. ये देखो, ये सूखे वाली चीज़ ये गीली है ना। ये उसको वही है ऐसा- जो चारा हाँ डालते हाँ हैं। हाँ हाँ। यहाँ पे गीली है अभी। गीली है। वो अनार अनार के दरख्त हैं। असं कदा तर कशा शुक्र असं कल साइडन तुम्ही बारा बिजा बिजा रे मार बिजा बारा बिजा आने से कोई बात नहीं है। ये सब सब्जियां हैं। हाँ, ये टमाटर है, ये प्याज है, प्याज और क्या क्या है? और नहीं गोभी है। गोभी भी है। हम्म। आपने कभी बाजार से भी खरीदी है नहीं, सब्जी? हम खुद करते हैं। तो ये लोग सेल्फ सफिशिएंट हैं। ये बिल्कुल ये भी- बाजार में बेचते हैं ना, ये उधर बना के बाजार। अच्छा, ये यहाँ से जाते हैं बाजार में। हाँ, ठीक है, ये यहाँ से देखिए दरिया से जलालाबाद से। टमाटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ये भी टमाटर है, देखें। टमाटरों के बीच में आज मैं खड़ी हूँ। यहाँ पे टमाटर ही टमाटर है और मैं अभी आपको तोड़ के दिखाती हूँ। टमाटर ताज़े ताज़े फ्रेश टमाटर यहाँ पे, ये देखें। ये पानी कहाँ से आता है? पहाड़ से निकल रहा है। अभी हम किधर जा रहे हैं? टमाटर यहाँ पे सुखा रहे हैं। ये देखो, ये छोटी दादी दादी ठीक है। ये सुखाने के बाद आप इसका क्या करते हैं? सर्दियों में जब सब्जी डालते हैं ना, सालन बनाने के लिए उधर डालते हैं। सालन में डालते हैं सर्दियों में। We also met an elderly grandma who was busy cutting up some tomatoes that would then be sun-dried on the rocks and stored for winter too. इस वक्त बड़ी अम्मा यहाँ पे टमाटर काट के ड्राई होने के लिए रख रही हैं और ये लोग सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। इनको बोरी में डाल के लटका दिया जाता है। ये लोग सेल्फ सफिशिएंट हैं, इनको बाहर से कुछ भी लेकर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वो देखें इनका टमाटर ड्राई होने के लिए। No, don't tell me. She asked me that ये आपको क्या लगती है? And I said मेरी अम्मी है. And she goes झूठ मत बोलो.
Words can barely explain how much we actually enjoyed our evening amidst the heavenly beauty of this remote village and its people. मेरी बहन कह रही है कि मैं उठाऊंगी आपके लिए। ये होती है हॉस्पिटैलिटी पाकिस्तान में। मकई के खेत है ये। वो देखें जनाब कितना खूबसूरत इनका गांव है। सच ब्लेस्ड पीपल। आई विश आई हैड अ हाउस हियर। बना लूँ यहाँ पे, है ना। और ये जनाब हमें हेलो कर रही हैं हमारी बकरियाँ। सामने पूरी रोड में सामने से रोड नजर आती है। अल्लाह का वही भी हमने दिया गई हो गया ना अंदर। ये सामने इधर क्या है इन खेतों में? ये सूखे वाली इस पे ये भी कोई चीज़ है फूल जिस पे लगे हुए हैं। ये चार है, चार अचार चार 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 सालन रोटी के साथ घास खाते हैं? नहीं घास है। घास है। अच्छा अच्छा, चारा हाँ, वाह। भैंस के लिए, बकरी के लिए। अच्छा। ठीक है, ये चारा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, ठीक। तो यहाँ पे हमें एक और अम्मा मिली हैं जिनकी वीडियो तो मैं नहीं बनाऊंगी। तस्वीर नहीं लिया, तस्वीर नहीं लिया। रूसिया हमें बता रही है कि जब गर्मी होती है तो इनकी गायें जो होती है यहाँ पे होती हैं, इस पहाड़ पे। वहाँ पे रखने की क्या वजह कि गर्मी में नहीं रह सकते यहाँ पे? नहीं, उधर चार बहुत ज्यादा होती है। चारा ज़्यादा होता है। ठीक। मोटे होके आते हैं। अच्छा, मोटे होके आते हैं माल मवेशी वहाँ से। ये देखें खेत कितने खूबसूरत। ये कितना खूबसूरत गांव है आपका। वो सामने आपको रोड नज़र आ रही है। आपकी एक गाय अभी ऊपर ही है? घर में है ना दूध। जो दूध देती है वो नीचे है, तो जो नहीं देती वो ऊपर है। बेल होते हैं ना, बेल छोटे बेल बड़े बेल। एक घंटा लगता है ना, सिर्फ एक घंटा लगता है ऊपर जाने के लिए 1 घंटा लगता है। साफ है ना, ये देखें साफ शफाफ पानी। साफ सुथरा है। आ जाओ, बस बुला रहे हैं। इस वक्त हम अरूसा की भाभी से मिल रहे हैं। मैं आपको सिर्फ उनके पाँव दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ पे ख़वातीन पर्दा करती हैं। तो मुझे पता है, इस चीज़ का अंदाज़ा है। यहाँ पे कई अंगूरों की बेलें भी हैं ना। अच्छा, ये वहाँ से लेकर आई हैं। क्या बात है।
इस वक्त हमें चाय पे बुला रहे हैं। आप यकीन करोगे ये जो हसीन जगह है ना, यहाँ से मेरा हिलने को दिल नहीं कर रहा। इस कदर खूबसूरत गांव, इस कदर खूबसूरत यहाँ पे चीज़ें खाने पीने की। ये देखें, ये गोभी लगी हुई है। ये आपकी बकरियां हैं? फूफी की। आपके सभी रिश्तेदार गांव में इसी में रहते हैं? ये घर किसका बन रहा है? ये मेरा वो भाई का। भाई का। अच्छा, माशाल्लाह। मेरे गाय है। ये आपकी, ये गाय भी आपकी है? हाँ, ये छोटी सी चल्लू है ये। आप यहाँ पे प्याज के अलावा टमाटर सुखाते हैं? टमाटर, सब्जी। हाँ। कभी बाहर से दुकान से कुछ नहीं लिया? हम सर्दियों में तो दाल शाल लेते हैं, दाल वगैरह लेते हैं? नहीं खाते हैं सब्जी, सुखा के नहीं खाते हैं। अच्छा। और आप सब्जी भी सुखा लेते हैं? हाँ। अच्छा। We went into the rustic and ravishing smoke-swept kitchens where the ladies made tea and local delicacies in front of us. अच्छा, आप इसको बाद में फ्राई भी करते हैं? जी जी। तो ये जो आपने देखा था बनाते हुए पैनकेक्स, इनको तवे के ऊपर, अभी ये इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे, फिर ये डालेंगे उसके अंदर गोश्त। ये गोली इसके साथ खाते हैं? इसी के खाली भी खाते हैं ना, ये चाय के साथ खाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ये गोली है, देसी घी है ना, देसी घी का तड़का लगाया है। ठीक, समझ गई। We were received with extreme hospitality and treated well. They had a joint family system, and trust me, the number of members in the family were hard to count. पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! Memories of this amazing settlement on the opposite side of the Giza Road will remain in our minds as fresh as ever for years to come, inshallah. Thank you for watching. Stay safe
and Allah Hafiz.